Hello everyone, myself Samarth Singh again in front of you in order to bring out our fourth lecture in this series. If I'm saying in the last of the classes, in last of the videos, we majorly had discussed regarding the concept of base price, factor cost, market price, and all those kind of stuffs. Okay. As well as in the last of the class, we majorly had also discussed about regarding our calculation of the GDP, in which we had taken only one method, that is through national income accounting. In that national income accounting, we majorly had discussed regarding that is what was the income equation that was out there, that is y is equal to c plus I plus g plus x minus m. Okay. And we had discussed one kind of previous year question that was also asked on that basis. Now see, I know that I have to start other methods of the GDP calculation, that is your value added method and expenditure method. Okay. And income method to be most exact. Okay. But before that, I am saying that is in order to understand those methods better, there is need to understand other aggregates of national income, so that understanding of those concepts becomes very much easy. Now see, if I'm talking about there, I had discussed regarding one aggregate of national income, and that was your GDP at market price. GDP at market price in the last of the class, and I had told you that how from market price you can go to base price or basic price, and from this basic price we can go to factor cost. We can go to factor cost. This we had discussed in the last of the section. Now see, there could be other kind of parameters as well, which we had not discussed till now. For example, in this entire thing, we will be majorly concentrating our discussion on two parameters. See, this one we had already discussed, that is how from market price we can go till factor cost. This we had discussed in the last of the section. So what becomes our topic of discussion in this video is that how we can go from gross to net, and from domestic to national. How we can go from gross to net and from domestic to national. Now see, why we are incorporating these two other factors, that becomes a very major task in order to understand. See, for example, I had given you in the last of the class the concept of real GDP as well as nominal GDP. Concept of real GDP as well as nominal GDP. Nominal GDP. In a real GDP and nominal GDP, I told you that is this nominal GDP we are calculating at current level prices, and this real GDP we are calculating at constant price or base price. Now see, if I'm talking about this constant price or base price, may take for example, I had to incorporate one example. For example, I'm taking a case of a car. For example, I'm taking a case of the car. Okay. This car, for example, I had bought in the year of 2011, and its value at that time was, I can take the case that it was 5 lakh rupees. Now over the period of time, its value will always obviously be decreasing, है ना? That is in 2021, for example, I am saying that इसका value क्या हो गया 2 lakh rupees. इसका value हो गया 2 lakh rupees. So here comes the concept of depreciation. In which we are saying that is decline in the value of, we are saying that is decline, yeah, decline in the value of a tangible asset, decline in the value of a tangible asset because of regular wear and tear. वियर एंड टीयर मतलब क्या, रेगुलर यूजेज की वजह से किसी का भी वैल्यू डिक्लाइन करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, देन आई विल बी सेइंग दैट इट इज क्या, इट इज टैंजल लिख दिया मैंने, दिस इज टैंजिबल. Okay, it will decline, that is decline of any value of a tangible asset because of regular wear and tear. Acha, what is tangible? Tangible majorly means anything that we can touch. So this is depreciation, decline in the value of a tangible asset over the period of time because of regular wear and tear. That is going to be your depreciation. Now see, when we were incorporating, for example, if I had to calculate my GDP, check,
At that time I was only incorporating that what was its price at base year, at base year पे उसका क्या price था, and over the period of time whatever was the value that was coming out, I was क्या calling that thing as GDP. ठीक. But in this entire of the factor we have not incorporated that there could be a decline in the value of the asset that must be happening over the period of time, and this decline of the value of the asset will obviously be reducing your GDP. For example, if I'm saying any shirt is produced at 20 rupees, okay, and we are incorporating that is, for example, 2 units of shirts are being produced, so GDP was 40. But now I have understood that this shirt jiska value मैं 20 rupees कर रहा था, now this is not even 20 rupees and rather it is 10 rupees. ठीक, एंड 20 रुपीज से 10 रुपीज हो गया, तो अब मेरी जीडीपी की वैल्यू क्या है, 20 रुपीज हो गई. ठीक, सो देयर क्या है, डिप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन माय जीडीपी इज reducing. So we have to incorporate this factor, this, because this depreciation becomes a very significant figure. Okay, now see, so in order to incorporate these kind of parameters, I am usually taking the concept of depreciation, in which I am saying that whenever I have to go from gross to net, I will be using the concept of depreciation, that is gross minus depreciation becomes net. So if I can say that gross domestic product minus depreciation becomes net domestic product, or I can say that is gross national product. ये अभी GNP मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैं बताऊंगा, डरना मत. ठीक, minus depreciation becomes your net नेशनल प्रोडक्ट. ठीक, सो ग्रॉस में से अगर मैं डी माइनस कर दूंगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, आई विल बी गेटिंग नेट. वेरी फर्स्ट ऑफ द रिलेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ सी, दिस हैड बीन द फर्स्ट ऑफ द केस दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ सी, ये मैंने इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया, दैट इज फर्स्ट ऑफ द थिंग दैट वी हैड मिस्ड. ठीक, दूसरा देखो, नेक्स्ट आई एम सेइंग दैट व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट this domestic region, I was only concerned about what was being produced in my domestic region only. There could be a case, for example, I am saying a person who is out there, take this is a particular region, for example, this is India and this is USA. There could be a case that is a person, Mr. A, who is living in India, might be making a good amount of money where in USA, and then he is bringing this money in India. ठीक है, ठीक. सो इस वाले फैक्टर को इनकॉर्पोरेट भी क्या डोमेस्टिक वाला फैक्टर नहीं करता. ये मैं बोल रहा हूँ, ये डोमेस्टिक नहीं है, ये मेरी क्या, ये बढ़ गई है, क्या इसकी रीच बढ़ गई है टू फॉरेन एज वेल. व्हेन आई एम ब्रिंगिंग माय फॉरेन इनकम इन द डोमेस्टिक बाउंड्री, आई एम सेइंग दैट इज डोमेस्टिक में अगर मैं NFIA ऐड कर दूं, व्हाट इज दिस NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. दिस इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम abroad. So in domestic, if I am adding net factor income from abroad, I am getting national. ठीक, ये किसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है, इफ आई एम अर्निंग समथिंग आउटसाइड एंड देन ब्रिंगिंग इट बैक इन माय रीजन. सो आई विल बी सेइंग दैट इज डोमेस्टिक, प्लस इफ आई एम एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आई विल बी गेटिंग national. So अगर मैं इसको और ट्रांसलेट करूं, फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग द केस ऑफ GDP. So GDP plus net factor income from abroad, I will be getting what? That is national domestic product. That is NDP. That is national domestic product. National domestic product. ठीक, मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दो. अच्छा, अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो मैं क्या बोलूंगा, माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, सिमिलरली इफ आई हैव टू गो फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू GDP, आई विल बी सेइंग माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, अच्छा देखो,
in this entire of the case, now we will be incorporating these concepts in order to understand what are different of the aggregates of the national income. Now see, if I am saying this one we had already discussed, in which we are incorporating that is gross domestic product at market price. Gross domestic product at market price was GDP MP. ठीक, ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूं. देन आई एम सेइंग जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. क्या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट? ठीक, ये भी आई हैड डिस्कस्ड इन द लास्ट ऑफ द क्लास व्हेन आई एम सेइंग क्या कि मार्केट प्राइस से मुझे कहां पे जाना था, फैक्टर कॉस्ट पे जाना था. यहां पे मैंने रखा था फैक्टर कॉस्ट, यहां पे मैंने रखा था क्या, आई हैड टेकन ओवर हियर फैक्टर कॉस्ट. फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट के बाद मैंने क्या बोला था, यहां पे आता था बेस प्राइस और बेसिक प्राइस. देन यहां पे आता था दैट इज ऑन मार्केट प्राइस, दैट इज ऑन मार्केट प्राइस. सो व्हेन आई वाज सेइंग फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे जाना है, मैं क्या बोलता था, दैट इज प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज. प्रोडक्शन टैक्सेस एंड प्रोडक्शन सब्सिडीज. हियर आई वाज सेइंग प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज. प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडीज. सो इफ यू मेजरली हैड टू गो फ्रॉम मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, ये मैं लास्ट के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं. सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सबट्रैक्टिंग नेट, यू आर सबट्रैक्टिंग व्हाट, क्या, net taxes and subsidies, net taxes and subsidies. And here so minus का minus हो जाता है plus. So that is how you are getting over here, that is net domestic product at factor cost is equal to GDP minus indirect taxes minus taxes plus minus का minus is plus, so plus subsidies. That is how you are getting this entire of the relation. Then I am saying gross domestic product, so net domestic product at market price. This is the third aggregate of the national income in which you can calculate. अब इसमें क्या है, देखो net domestic product. अब बस मुझे इसमें क्या करना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से बस मुझे माइनस कर देना है क्या, डेप्रिसिएशन. सो इफ आई एम क्या, ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रिसिएशन. सो आई एम subtracting depreciation from this GDP at market price, and thus we are getting net domestic product at market price. So what is this net domestic product at market price? Is GDP at market price minus depreciation. Gross से देखो चेंज कहां पर हो रहा है, बस N और G यहीं पे बस चेंज हो रहा है. सो ठीक, तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, मैं क्या करूंगा, G में से depreciation माइनस कर दूंगा, एंड दैट इज हाउ वी आर गेटिंग द थर्ड ऑफ द फैक्टर. यहां पर अभी मैंने बताया था आपको, दिस वॉज द केस. ठीक है, ग्रॉस से नेट पर जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो. ठीक है, तो ग्रॉस से नेट पर जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो. ठीक, देन आई एम सेइंग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. देखो ये क्या था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एंड दिस इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. Now what I am saying, you know what is net domestic product at market price. This you have already calculated through what, through GDP at market price minus depreciation. अब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है क्या. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वन इज एनडीपी एट मार्केट प्राइस, वन इट इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वन इज एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. सो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी सिंपली इनकॉर्पोरेटिंग दिस थिंग कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट में जाना है, तो ये वाला रिलेशन लगेगा क्या, दैट इज माइनस कर दो टैक्सेस एंड सब्सिडीज. सो माइनस का माइनस ये वाला हो जाएगा प्लस, सो इट विल बी माइनस नेट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. ठीक है, सो ओवर हियर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बिकम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यू नो, minus indirect taxes and subsidies, minus indirect taxes from and subsidies. So market price से factor cost आपको जाना है, ये आपको relation आ गया. ठीक, अगला मैंने क्या बोला, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आपका यहाँ पे क्या है, यू नो व्हाट, यू नो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यू नो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अब दोनों में किसका डिफरेंस है, दोनों में बस डिफरेंस है, एक है डोमेस्टिक को इनकॉर्पोरेट कर रहा है, वन इज इनकॉर्पोरेटिंग नेशनल. सो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, सो एड नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड. क्या, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो ऐड नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो हियर यू आर डूइंग दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आपने नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दिया, सो यू आर गेटिंग व्हाट, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. सो मैं ये ऐसे लिखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट at market price में if you are adding net factor income from abroad, you are getting what, that is gross national product at market price.
ठीक, आसान है, बहुत आसान है, अब सब कुछ क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे। नाउ सी, अगला फैक्टर मेरा क्या है, अगला फैक्टर इज सेइंग दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो एक आगे तो सब आप धीरे धीरे निकाल सकते हैं, ठीक। Now I am saying what you are doing, that is gross national product at factor cost. You have to calculate gross national product at factor cost. You have already calculated gross national product at market price. तो अब market price से अब आपको factor cost जाना है, तो obviously ऊपर वाले relation फिर से वही क्या कर दो, taxes subtract कर दो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, हर चीज को मैं क्या ले रहा हूँ, जीडीपी की फॉर्म में ले रहा हूँ। तो जीडीपी से if I am doing GDP at market price, यहाँ पे मैंने क्या किया, I have taken GDP at market price से अगर मुझे क्या जानना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे जाना है, ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, सॉरी हाँ, अगर मुझे क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पे जाना है, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, इसमें बस मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना है। सो दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। सबसे पहले हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से किस में गए, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ये तो इससे तो आ गया आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इन दोनों फैक्टर से आपका आ गया जीएनपी एट मार्केट प्राइस। अब मुझे क्या करना है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस से कहां पे जाना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, सो फिर से वही मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। सो दैट इज हाउ यू आर गेटिंग रिलेशन नंबर 6। नाउ आई एम सीइंग द नेक्स्ट ऑफ द थिंग दैट इज आउट देयर। अगला देखो, अगला मैंने क्या बोला, आई एम सेइंग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मैंने क्या बोल दिया, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसके लिए देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो जीडीपी मैंने लिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मैंने लिया, इसमें इफ आई एम क्या सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, सो आई विल बी डूइंग व्हाट, आई विल बी डूइंग व्हाट, दैट यहां पे क्या किया मैंने, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम, हाँ ठीक है, ये क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना था, तो मैंने क्या कर दिया, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। अब मुझे इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से कहां जाना है, मुझे जाना है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब मुझे इस डी को एन में चेंज करना है, सो हाउ आई विल बी चेंजिंग दिस डी टू एन, बाय adding net foreign income from net factor income from abroad. So I will be saying that is net domestic product at market price, ठीक, plus net foreign income from abroad, ठीक, ये क्या हो जाएगा फिर आपका, देखो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो कैसे किया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। देखो यहां पर क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन, इससे क्या आ गया आपका, इससे आपका आ गया क्या, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, ठीक। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने ग्रॉस को किस में चेंज किया, ग्रॉस को नेट में चेंज कर दिया, ठीक, बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन। अब मुझे क्या करना है, इस डी को एन में चेंज करना है, डोमेस्टिक से नेशनल करना है। सो डोमेस्टिक से नेशनल मैं कैसे करूंगा, by adding in this net factor income from abroad. So when I am doing this thing, NDP at market price plus net factor income from abroad, I am getting net national product at market price. Now the last aggregate that is left is net national product or net national product at factor cost or national income, ठीक। इसमें व्हाट आई एम सेइंग, सबसे पहले आपने क्या किया, देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है। अब इसको अगर मैं इस तरीके से देखूं, सबसे पहले अगर मैं लेता हूं जीडीपी एट मार्केट प्राइस में ले लेता हूं, ठीक, जीडीपी। अब देखो मुझे दो चेंज करने हैं, ठीक है, नेट पहले मैं क्या करूंगा, मार्केट जी को एन में चेंज कर दो, ठीक है, ठीक, सॉरी क्या, डी को पहले एन में ऐसा करो, हाँ जी को एन में चेंज कर दो, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आई कैन क्या गेट बाय सब्ट्रैक्टिंग डिप्रिसिएशन, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को किस में चेंज कर रहा हूं, आई एम चेंजिंग इट टू व्हाट, आई एम चेंजिंग इट टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी एडिंग नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। सो हाउ आई विल बी गेटिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस,
ठीक। अब मेरे पास ये आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब मेरे पास क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे इट इज फैक्टर कॉस्ट, नाउ हैव क्या, मार्केट प्राइस। अब मुझे मार्केट प्राइस से क्या बस किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, माय टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, तो अब इसमें मैं क्या करूंगा, ठीक, क्या नेशनल से मार्केट प्राइस से मुझे किस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। सो पहले मैं क्या करूंगा, क्या आपके टैक्सेस सब ऐड हटा दूंगा और सब्सिडीज ऐड कर दूंगा, क्योंकि माइनस का माइनस क्या हो जाता था, प्लस प्लस। ठीक, तो अब देखो क्या यही रिलेशन आ रहा है, प्लीज सी। इफ आई एम सेइंग मैंने डिप्रिसिएशन माइनस किया, डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, किस में माइनस किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में माइनस किया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस में माइनस किया। फिर मैंने क्या किया, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दिया। मैंने माइनस टैक्सेस किया, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गया। मैंने प्लस सब्सिडीज किया, इट इज प्लस सब्सिडीज, एंड दैट इज हाउ यू आर गेटिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बहुत आसान है, एक बार फिर से वीडियो देखिए, बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, वी कैन ऑब्वियसली डिस्कस इट वंस अगेन। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या यूपीएससी का पूछा हुआ क्या क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोलता है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कोनेट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कब का है, यूपीएससी 2018 का है। इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप अप पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट, नो दिस इज नॉट द केस। अब देखो आपको पता है हाउ डू यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप द इंडस्ट्रियल आउटपुट, नो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ये वाला उसका ऑप्शन होगा, दैट इज पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। ठीक है, सो इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डू नॉट कोनेट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। बहुत आसान है। ठीक, अगर आपका पर कैपिटा क्या चीजें नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है, आपकी पोवर्टी बढ़ती जा रही है, ठीक है, सो इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कोनेट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपका साथ साथ में क्या कर रहा है, पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सो दिस इज द आंसर। ठीक, अच्छा, और जैसे मैं हमेशा क्या बताता हूँ अपने का टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, यू कैन ऑलवेज फॉलो दिस टेलीग्राम ग्रुप, एवरी ऑफ माई स्टूडेंट इज आउट देयर। ठीक, सो यू कैन फॉलो मी इन टेलीग्राम एट sammy2908, टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, एवरीवन इज पार्ट ऑफ इट। ठीक, सो यू कैन टेक द स्नैपशॉट ऑफ दिस। और जैसे मैं हमेशा क्लास एंड करता हूँ, कैसे क्लास एंड करता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी क्लास देखते रहिए। Why? Because UPSC is not a game of IQ, it is a game of EQ. चलो बाय बाय बच्चा, see you in the next class. Bye.